Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Today is my lecture number 3rd part C, chapter number 11. Chapter is materials, metals and non-metals. Today our topic will be chemical properties of metals. Dear students, this is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute, Nagaon. Dear students, today we discuss on this topic chemical properties of metals. Metals इससे हमने previous lecture में पढ़ा कि physical properties of metals and non-metals. Today we specifically do study about the chemical properties of metals. You know the various substances or metals, and we also study about their properties and definitions in the previous lectures. In chemical properties, metals show chemical reaction with atmospheric oxygen. They show chemical reaction with water. They show chemical reaction with acids. So वगैरह वगैरह they show the chemical according to the its science is concerned. We have in brief study about the chemical properties. Yeah, we can say chemical reactivity of metals towards various substances like atmospheric oxygen, water, acid, hydrogen, etc., etc. Now we discuss in these metals chemical properties of metals. First of all, जो metals है ये वाटर के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ पहले इनको रिएक्शन कराएंगे. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये मेटल्स बनाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स. डियर स्टूडेंट्स, कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द एटमॉस्फेरिक रिएक्शन एंड they show us a vigorous reaction with atmospheric reaction. They are highly reactive with atmospheric oxygen. Yes, I am talking about the sodium like element metal, sodium lithium like metal, potassium like metal. These are highly reactive with the oxygen. जब भी हम इनको कंटेनर से बाहर निकालेंगे so they spontaneously means by naturally without giving any energy they react with atmospheric oxygen. Whenever metals react with atmospheric oxygen, they form the metallic oxide. Yeah, simply we can say metal oxides. Metal oxides or metallic oxides are basic in nature. Later on we prove it by the litmus test. जब हम इनको लैब में लिटमस टेस्ट करते हैं फिर इन ऑक्साइड्स को मेटेलिक ऑक्साइड्स को वहाँ प्रूव होते हैं. दे आर द बेसिक ऑक्साइड्स इन नेचर. So therefore our today topic is a part I will write with metal show reaction with atmospheric oxygen. Atmospheric oxygen metal show reaction. That means atmospheric जो ऑक्सीजन है metal show atmospheric reaction with atmospheric oxygen. I mean O2. जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में ये मॉलिक्यूलर इन स्टेट होता है. यही मॉलिक्यूलर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है. स्टेबल इन कंडीशन होता है. हवा में मौजूद होता है ऑक्सीजन. बिल्कुल हमें मेटल मैंने अभी बताया कि लिथियम सोडियम पोटेशियम है. दे शोज द natural reaction with the atmospheric oxygen, so that we should always capture in laboratories such metals potassium, sodium, lithium in an airtight container so that they should not react with atmospheric oxygen. It is an important point to mention here. Therefore, I will write a word equation about this how metal shows the atmospheric reaction with atmospheric oxygen. यही बनता है metals में chemical properties. तो क्या है हम लेंगे जनरल तौर में कहूँगा. यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे जब भी metals हो प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन, आई राइट हियर ऑक्सीजन गैस, यहाँ जो मेटल है ये दीज आर ऑलवेज मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स और सॉलिड इन स्टेट। जब भी हम इनको रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, ये ऑक्सीजन कहाँ होता है, ये एटमॉस्फेयर में होता है, एंड दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ शाबाश बेटा मेटल, मेटेलिक, शाबाश मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये मैंने जनरल बताया रिएक्शन क्या होता है जब भी मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, जब भी ये इनको हम रिएक्ट कराने की कोशिश कर लेंगे तो यहाँ बनता है मेटेलिक ऑक्साइड, हमें प्रोडक्ट में मिलता है मेटेलिक ऑक्साइड। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी टेक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ chemical reaction so that we could better understand about this first chemical properties of metals. हम लेंगे एक कॉमन एग्जांपल है ये सोडियम मेटल। इफ वी टेक द सोडियम, आई विल राइट इट अ वर्ड इक्वेशन फर्स्ट। सोडियम, इफ वी टेक द मेटल, यहाँ पे मेटल सॉलिड स्टेट में से वी टेक सोडियम मेटल, सोडियम मेटल इज इन सॉलिड स्टेट। कल मैंने बताया लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, ये वैक्स जैसा होता है। वी शुड नॉट whenever we have to deal with the sodium metal, we always take we always take the precaution measures while dealing with the sodium metal. कभी कभार हमारे हाथ में मॉइस्चर होता है, उससे भी ये एक विगोरियस रिएक्शन दिखाता है। जब भी ये इसके साथ, अब यही ऊपर वाला रिएक्शन में एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सोडियम मेटल को हमने यहाँ पे ऑक्सीजन, शाबाश, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराया, शाबाश। यहाँ मेटल में मैंने लिया सोडियम मेटल को, शाबाश। ऑक्सीजन गैस इज ऑक्सीजन गैस, इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, gaseous in state, and what product I will get, that yes, शाबाश बेटो, सोडियम, I will get सोडियम ऑक्साइड। मुझे क्या मिलेगा, शाबाश, मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा सोडियम ऑक्साइड। स्टिल दिस सोडियम ऑक्साइड इज इन अ सॉलिड स्टेट, स्टिल इट इज इन अ सॉलिड स्टेट। सोडियम ऑक्साइड मुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है। यहाँ मेटेलिक ऑक्साइड मिले, सोडियम ऑक्साइड मिला। ये जनरल टाइप, मैंने जनरल रिएक्शन लिखी। जनरल रिएक्शन के बाद मैंने स्पेसिफिक रिएक्शन दिखा। यहाँ मैंने स्पेसिफिक मेटल लिया, सोडियम मेटल को, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। ध्यान रखिए, वहां हमें प्रोडक्ट में मिला सोडियम ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, I will take this is a word equation. If you have to go there, then a symbolic equation you should write always. You should always try to write the reaction in symbolic in form. तो हम लेंगे सोडियम मेटल को, ये लिया मैंने। सोडियम का जो आपको पता है, ये कि सिंबल जो होता है सोडियम का Na, और ये किस स्टेट में होता है, हम छोटा s लिखेंगे साथ में। तो इसका मतलब है ये सोडियम मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में है। इसका मतलब होता है ये सोडियम जो है सॉलिड स्टेट में है। और हमने अगेन ऑक्सीजन गैस के साथ क्या कराया, प्लस का मतलब होता है यहाँ दो अलग अलग केमिकल्स रिएक्ट होते हैं। प्लस का मतलब दे कम टू रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ इन्होंने O2 means oxygen gas, then it is in gases in state, shabash beto, and they give the formation of what? They give the formation of Na2O। यहाँ इसका मतलब होता है दिस इज द सोडियम ऑक्साइड, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। आपको मिला सोडियम ऑक्साइड। थोड़ा बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे हम, वी विल प्लेस हियर, यहाँ पे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, दिस इज द 4 टाइम्स। बैलेंस रखेंगे, जितने बैलेंस कैसे, यहाँ से भी देखना पड़ता है हमें केमिकल रिएक्शन में, लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है सोडियम के, यहाँ से भी हमें उतना ही नंबर ऑफ एटम सोडियम के आना चाहिए। यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ से भी हमें इक्वल करना है। इनको हम कहते हैं कि इट इज अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक फॉर्म में है और वर्ड फॉर्म इक्वेशन है। 2 फॉर्म्स मैंने
मतलब आपको दिखाया बोर्ड पे। फर्क क्या है इनको, इट इज अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, दीज आर द रिएक्टेंट्स, एरो गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो हमें यहाँ सोडियम ऑक्साइड बेटा मिला, हमें मिला ये सॉलिड स्टेट में, still it get with the product we get sodium oxide, we get still it in a solid state। यहाँ मुझे कुछ कहना, बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे सोडियम, मैंने यहाँ 4 प्लेस किया ताकि यहाँ सोडियम जो है 4 टाइम्स लेंगे, यहाँ 2 है तो 2 आगे रखेंगे, 2 2 आर 4, ये इंटू होता है इसके साथ, 2 2 आर 4 आया सोडियम 4 टाइम्स, यहाँ सोडियम भी आया 4 टाइम्स, और ऑक्सीजन 2 टाइम्स है। ये जो 2 होता है ये इसका भी होता है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका भी होता है। यहाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ, 2 टाइम्स ऑक्सीजन 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 2 2 आर 4 and 4 times sodium, 4 times sodium. This is a reaction of this is a symbolic reaction of the sodium, how it reacts with atmospheric oxygen, word form equation and symbolic form equation. Dono you should try to write both the equation, and you should keep an interest to learn in such elementary classes, how try to always write symbolic equation. We will take the another example. जो यहाँ पे सोडियम जो है it is highly reactive with atmospheric oxygen, मैंने इसे पहले भी बताया, highly reactive with atmospheric oxygen, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड। तो कॉमनली जो कॉमनली हम लैब वर्क भी करते हैं इस पे, हम वहाँ पे लेबोरेटरी वर्क है, लैब एक्टिविटी है, हम ये रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, हाउ मेटल शोज द केमिकल रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हम यूजुअली वी टेक द दिस रिएक्शन इन द लेबोरेटरी, दैट इज वी रिएक्ट मैग्नीशियम विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यहाँ मैग्नीशियम जो है ये रिबन फॉर्म होता है, सॉलिड इन स्टेट होता है। हम इसको ये लैब वर्क में हम बच्चों को दिखाते, इस टाइप का प्रॉपर्टीज हम बच्चों को दिखाते। ये लैब एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। हम वहाँ मेटल एक लेते हैं, इट इज कॉमन एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ मेटल्स आर रिएक्टिव विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। वहाँ हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, इसको टंग में पकड़ लेते हैं, एंड वही बर्न, हमें ये इट नॉट शोज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट मीन इट नॉट शोज द नेचुरल रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। हमें पहले हीट देना पड़ता है इस रिएक्शन को, हमें कुछ देर तक मैग्नीशियम को फ्लेम पे रखना होता है, विद द हेल्प ऑफ टंग से हमें पकड़ना होता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है it burns with a bright flame, and we already advise students not to glare, not to gaze on this flame, this bright whitish flame is releasing while burning the magnesium ribbon। तो हम टंग से पकड़ लेते हैं, खासकर जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराएंगे ऑन द फ्लेम, इसको ऐश इट कन्वर्ट्स इनटू ऐश, स्टिल इन सॉलिड स्टेट। हम इसको लेते हैं पेट्री डिश में, पेट्री डिश के पास वहीं हम लेते हैं, तो उस पे वो जो प्रोडक्ट मिला ऐश फॉर्म में हमें, वो प्रोडक्ट उसी पेट्री डिश में हम कलेक्ट कर लेते हैं। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वर्क पे भी प्रैक्टिकल भी इस पे कर लेंगे, एंड देयर I will show you this type of chemical reaction, and we take the magnesium. I will write here that we take here magnesium, हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम रिबन, वी टेक मैग्नीशियम रिबन, सॉलिड इन स्टेट होता है, जो सॉलिड इन स्टेट हम इसको वैसे ऑक्सीजन, शाबाश, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं हम। इट नॉट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली, ये खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होती है, ध्यान रखिए, हमें सेपरेट लैंप जलाना पड़ता है। इसको मैग्नीशियम रिबन को पहले बर्न करना होता है, देन वी आर गिविंग द फ्लेम। हम इस पे एरो के ऊपर ट्रायंगल प्लेस करते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है व्हेन वी प्लेस अ ट्रायंगल ऑन द एरो, याद रखिए, दैट मीन वी आर गिविंग द हीट
That means when we are going to try to combine these two products, magnesium ribbon burns in the presence of atmospheric oxygen, there is the formation of magnesium oxide. Yes, there is the formation of the product magnesium oxide. याद रखा आपने, हमेशा जो मेटल्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ को बनाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स, यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सॉलिड स्टेट में होता है, हमें यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है in the form of ash. It is a lab work, laboratory work, and teacher often take this common example in laboratory demonstration. For laboratory demonstration, we take the magnesium ribbon. The symbol is for magnesium का जो symbol है that is Mg, and S साथ लिखते हैं हम। S जो होता है small that it represent this type of metal you find in the laboratory in solid state ribbon form, and there you try to react it with atmospheric oxygen. ऐसी रिएक्शन नहीं होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। हमें ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए we are supplying some heat in the form of flame. हमें मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम पे रखना होता है, हाथ से नहीं रख, हाथ से पकड़, we don't hold up it by our hands, we should always hold it up by the tongue. While doing this type of laboratory work, lab work, we already told about to the students what precaution measures will you take before you demonstrate this type of reaction in the laboratory. What then reaction between the two products, metal यहाँ react हो रहा है, atmospheric oxygen provide, triangle का मतलब होता है we provide heat when we combine both the two products. What here is the formation of magnesium, शाबाश, magnesium oxide. हमें यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, यहाँ देखिए हमें यहाँ मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, we get a magnesium oxide here. We will try to balance this, that is the you place here magnesium is 1, that means 2, यहाँ आप 2 place कर लेंगे, this is the 2 times magnesium, you will take the 2 times here magnesium. यहाँ 2 एटम आए ऑक्सीजन के, ये O होता O2 का 2 atoms of oxygen, यहाँ पे भी है 2 atoms oxygen, ये 2 इससे पहले भी बताया, this 2 is for this and it is also for this, तो ये 2 इसका भी है और इसका भी है, यहाँ 2 times ऑक्सीजन भी मिला, मैग्नीशियम भी यहाँ 2 times मिला, then it is a balanced form of chemical reaction. Dear students, these are the with atmospheric oxygen, some metals are highly reactive. Some metals are moderate reactive towards the atmospheric oxygen, and some metals are least reactive towards the oxygen. I told about some least metals which shows the least reaction with atmospheric oxygen, that is the silver, copper, iron, palladium. They show the least reactive, तो वो ऑक्साइड स्टेट में नहीं चला जाता है, दे शो द poor reaction with atmospheric oxygen. अगर हमें कराना होगा atmospheric oxygen के साथ react उनको, then we should strongly heat those metals to react with atmospheric oxygen. On strong heating, they then react with atmospheric oxygen. Then we will take an example of the iron filling. So we react with atmospheric oxygen, it forms the iron third oxide. तो अगर ऐसे ही हम कॉपर को we try to react it with oxygen, then we should strongly heat the copper. Then it reacts with oxygen, it gives the formation of the copper oxide. But least reaction, it shows the least slow reaction towards the atmospheric oxygen. But highly reactive metals towards the oxygen are sodium, potassium, lithium. हम बात कर लेंगे others जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, they shows the
they also undergoes the oxidation state. They also give the formation of the zinc oxide, calcium oxide, aluminum oxygen के साथ aluminum oxides, those are they also convert into the metallic oxides. And मैंने ये important बात याद रखी है, जब whenever metals react with atmospheric oxygen they form the metallic oxide. Then later on we prove some metallic oxide are soluble in water, some metallic oxides are insoluble या partially soluble in water. Then it gives then we can say जो metallic oxide है on the basis of the litmus test, red litmus या either the blue litmus test, तो वो क्या दिखाते, they are usually generally they are the basic oxides in nature. Later on we will study about the chemical reaction of metals with वाटर. फिर हम हमारा जो अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अब उसके बदले हम लेंगे यहाँ वाटर के साथ कैसे वो रिएक्ट कराते हैं, मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड. डियर स्टूडेंट्स, आई आल्सो मेंशन in my notes about the chemical properties of metals. वहाँ word form equation भी है, symbolic form भी equation है. It is upon you and you should both remember both the type of reaction. आपको ऐसे भी लिखना चाहे और ऐसे भी आपको रिप्रेजेंट करनी होगी रिएक्शन. तो आज का लेक्चर हमारा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और नेक्स्ट लेक्चर में ही आएगा फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद द वाटर देन ऑफ द एसिड्स एज पर योर टेक्स्ट बुक इज कंसर्न्ड. यहाँ तक वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं आपको पढ़ना है वह, और आपको फिर बाद में पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स विद सिमिलरली विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, विद वाटर, विद एसिड्स, विद हाइड्रोजन एटसेट्रा, हाउ दे शो द केमिकल रिएक्शन देन ऑफ. मैंने या वंस अगेन आई टेल यू, जब भी हमें मेटल्स को केमिकली रिएक्ट कराया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, वहां बनता है मेटेलिक ऑक्साइड. तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है. आई होप डियर स्टूडेंट्स टुडे you understand much better the chemical properties of metals. Chapter number 11 chapter is materials, metals and non-metals. It is 8th science. Thank you very much.